Hello everyone. We are going to start with the next part of reproduction in organism, that is sexual reproduction. We have already covered the basics of this chapter and one part of this chapter, that is asexual reproduction. If you want to watch those video, I have mentioned the link in the description box so that you can stay connected with this chapter. So let's get started. So let us start with sexual reproduction. As I have mentioned earlier, sexual reproduction contain two different gametes and they are called to be sex cells or germline cells or gametes. So when these two gametes are fused together, they form a zygote. If I talk about sexual reproduction, there are many different important points. So we'll talk about juvenile phase. Juvenile phase is nothing but the phase starting from your birth till you attain and maturity, that is called to be the juvenile phase, and same occurs in plants, which is called to be vegetative phase. If I talk about reproडक्टिव फेज एक ऐसा फेज है जिसमें वी आर एबल टू सी सम डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल गोइंग इनसाइड द फीमेल और मेल बॉडी टू प्रोड्यूस सम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनसाइड द सेल. तो उनको मेच्योर करने के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है मेल या फीमेल बॉडी में, उसको मेच्योर करने के लिए, ताकि ओवम्स जो है वो प्रोड्यूस हो पाए या फिर मेल बॉडी जो है वो स्पर्म को प्रोड्यूस कर पाए. अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो मेच्योर नहीं होंगे तो रिप्रोडक्शन जो है वो बराबर से नहीं हो पाएगा. सो टू मेक श्योर दैट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर producing the sex cells, reproductive phase is carried out inside the body. If I talk about the menstruation cycle, प्रीमेट एनिमल्स जो होते हैं उनमें menstruation cycle देखने मिलता है और यही सेम साइकिल नॉन प्रीमेट एनिमल्स में भी होता है, बट उसको वो लोग ऑशरस साइकिल जैसे बोलते हैं. सो दिस इज अ टाइप ऑफ साइकिल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट द रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू बी carried out. If I talk about breeders, there are two type of breeders. One is seasonal breeder and continuous breeder. Seasonal breeders जो होते हैं वो favorable seasons में ही breed कर पाते हैं और जो continuous breeder होते हैं वो throughout the year कभी भी breed कर सकते हैं. Then there are changes and hormones. Changes are the part of hormones. जैसे जैसे अपने body में different changes देखने मिलेंगे, hormones are going to be secreted inside the body. So there is a proper reproductive phase development and juvenile phase development. So hormones will play an important role in the expression or behavioral pattern, or there is an interaction between the hormones inside the body, so that the hormones are going to give some signals inside the body, so that अपने body के अंदर जितना भी functioning हो रहा है वो properly होना चाहिए. So this was all about changes and hormones. If I talk about fertilization, before the fertilization there is a very important event that is going to be carried out, that is pre-fertilization. And once the fertilization has taken place, the next event is post-fertilization. So we will see about these three stages. फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. प्री फर्टिलाइजेशन मतलब क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन से पहले. सो फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट द फ्यूजन बिटवीन द गैमेट्स. तो गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैमेट्स का प्रोडक्शन होना चाहिए. दैट इज नथिंग बट इज गोइंग टू बी अकर इन प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज. तो प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है गैमेट्स का प्रोड्यूस होना, जिसको हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं. तो अगर एक मेल बॉडी है तो उसके अंदर ओवम्स प्रोड्यूस होंगे, और अगर एक फीमेल बॉडी है तो उसके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे. सॉरी, मेल बॉडी है तो उसके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे. सो दैट इज नथिंग बट गैमेटोजेनेसिस. गैमेट का फॉर्मेशन होना इज गैमेटोजेनेसिस. इफ आई टॉक अबाउट गैमेट ट्रांसफर, सिर्फ गैमेट्स का प्रोड्यूस होने से कुछ नहीं होगा. द गैमेट्स नीड टू बी रीच टू द एग्जैक्ट लोकेशन वेर दे हैव टू. सो गैमेट्स जो है वो बराबर से उनके लोकेशन पर पहुंचने चाहिए, इसीलिए गैमेट ट्रांसफर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ दिस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. सो आई होप दिस मच इज क्लियर दैट गैमेट्स का प्रोड्यूस होना और गैमेट्स का बराबर जगह पर जाकर फॉर्मेशन होना. जैसे अगर स्पर्म की बात करें तो स्पर्म अगर ओवम तलक नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा. इफ़ वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है सो दैट मेल जो स्पर्म है वो फीमेल ओवम तलक पहुँचे. उसके लिए डिफरेंट मीडियम्स है, जैसे वाटर इज़ वन ऑफ द मीडियम.
नाउ विल टॉक अबाउट द फीमेल एंड मेल सेल्स. ये जो सेल्स होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में ये हैप्लॉइड हो सकते हैं या डिप्लॉइड हो सकते हैं. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैप्लॉइड एंड व्हाट इज डिप्लॉइड. हैप्लॉइड का मतलब होता है, अगर एक सेल का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एक सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. इफ दिस सेल इज गोइंग टू डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल सेल एंड बोथ द सेल कंटेन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो ऐसे हम लोग डिवीजन को जो बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड. यानी कि दोनों सेल के पास एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और दोनों के दोनों फुलफिल कर रहे क्रोमोसोम से. ऐसे जो डिवीजन होती है उसको हम लोग माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं. और अगर मैं एक सेल का एग्जाम्पल ले रही हूँ जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और ये ऐसे दो सेल्स को डिवाइड कर रहा है जिसमें एक के अंदर 23 है और दूसरे के अंदर भी 23 है, तो दिस सेल हैज अंडरगॉन रिडक्शनल डिवीजन. और ऐसे रिडक्शनल डिवीजन को हम लोग मियोसिस बोलते हैं. तो ये जो सेल्स प्रोड्यूस हो गई है इसको हम लोग हैप्लॉइड बोलेंगे, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैरी कर रहे हैं, और डिप्लॉइड में फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैरी कर रहे हैं. सो आई थिंक दिस मच इज क्लियर. देन विल मूव ऑन टू द गैमेट्स. अगर दोनों भी गैमेट्स, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे, बोथ द फीमेल एंड मेल गैमेट्स आर सिमिलर टू ईच अदर. हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा फीमेल है और कौन सा मेल है. जब ऐसे गैमेट्स फॉर्म होते हैं हम लोग इसको होमोगैमेट या आइसोगैमेट्स बोलते हैं. If we talk about human beings या any other organism which produce two different gametes, जैसे कि sperm और ovum आपस में दूसरे से बहुत अलग दिखते हैं, इसीलिए हम लोग इनको heterogametes बोलते हैं. जैसे कि फीमेल्स में ovum होता है और मेल्स में sperm होता है. इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फर्दर डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस, तो उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि बायसेक्सुअल क्या है या मोनोएशियस क्या है. तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं. सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सेल which contain or any type of organism which has both male and female सेक्स ऑर्गन्स. जैसे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास मेल एंड फीमेल दोनों सेल्स उसी के बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब एक ही सेल के अंदर दोनों भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होना, उसको हम लोग बायसेक्सुअल बोलते हैं. बाय का मतलब क्या होता है? दो. तो दोनों सेक्सेस अगर एक ही बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो ऐसे सेक्शंस को हम लोग बायसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. एंड इफ टू सेपरेट इंडिविजुअल्स आर कैरिंग टू डिफरेंट सेक्सेस, जैसे फीमेल और मेल ह्यूमन बींग्स में अलग अलग होते हैं, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड टू बी यूनिसेक्सुअल मतलब वो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग यूनिसेक्सुअल बोलेंगे. द सेम टर्म इज यूज्ड हियर, जैसे मोनोएशियस और डायएशियस. मोनोएशियस का मतलब होता है ऐसा फ्लावर जिसके अंदर दोनों भी सेक्सेस होंगे, जैसे फीमेल एंड मेल. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स, इफ दैट प्लांट कंटेन बोथ फीमेल एंड मेल गैमेट्स, उसको हम लोग मोनोएशियस बोलेंगे, जिसका एग्जाम्पल है कोकोनट. और अगर मैं एक ऐसे इंडिविजुअल प्लांट की बात कर रही हूँ जिसके अंदर सिर्फ एक गैमेट है, जैसे इधर फीमेल और मेल, ऐसे प्लांट को हम लोग डायशियस बोलेंगे, जिसका एग्जाम्पल है पपैया. ऐसे ही सेम वर्ड्स यहाँ पर भी दिए हुए, जैसे मोनोएशियस को हम लोग होमोथैलिक भी बोल सकते हैं या हेट्रोथैलिक भी बोल सकते हैं. होमो का मतलब हो गया सेम, हेट्रो का मतलब हो गया अलग अलग. तो अगर मोनोएशियस, जैसे मैंने बोला, अलग अलग गैमेट्स अगर एक ही इसमें प्रेजेंट है तो फिर हम लोग उसको होमोथैलिक बोलेंगे. और अगर दो अलग अलग प्लांट्स में टू डिफरेंट सेपरेट गैमेट्स है तो उसको हम लोग हेट्रोथैलिक बोलेंगे. सो आई होप दिस ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल. नाउ विल मूव ऑन टू सम एनिमल्स जिसमें ये सब देखने मिलता है. सो इफ आई टॉक अबाउट हर्माफ्रोराइट, हर्माफ्रोराइट कुछ ऐसे एनिमल्स है जो कि बायसेक्सुअल होते हैं, मतलब उसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों भी गैमेट्स एक ही एनिमल में पाए जाएंगे. इफ आई टॉक अबाउट यूनिसेक्सुअल स्पीशीज, तो इसमें कॉकरोच आता है, यानी कि इसके अंदर फीमेल कॉकरोचेस एंड मेल कॉकरोचेस पाए जाते हैं. मतलब एक कॉकरोच के अंदर एक टाइप का गैमेट प्रोड्यूस होगा, ईदर कैन बी फीमेल और कैन बी मेल. नाउ इफ आई टॉक अबाउट सेल डिवीजन, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड क्या होता है. और हैप्लॉइड जो है वो मियोसिस के थ्रू होता है एंड डिप्लॉइड जो है वो माइटोटिक डिवीजन के वजह से होता है. तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जैसे मोनेरा, फंगाई और ये जो एग्जांपल्स दिए हुए, ये सब हैप्लॉइड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं. और अगर हम लोग इसकी एग्जांपल ले, जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ये सब जो है, और इवन ह्यूमंस, ये कैसे सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं?
डिप्लॉइड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में एक्चुअली डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड दोनों टाइप के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे सेक्स सेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और जो स्किन सेल्स और बाकी जगह पर जो भी सोमैटिक सेल डिवीजन जो होता है उसके अंदर हैप्लॉइड सेल्स, डिप्लॉइड सेल्स पाए जाते हैं। सो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू डू द सेल डिवीजन पार्ट। अभी के लिए सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना इंपॉर्टेंट है कि हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, और ये कौन से सेल डिवीजन से हो रहा है। In diploid organisms, some special kinds of cell are produced which are called as myocytes because they are undergoing meiosis. So the next is gamete transfer. Gamete transfer, as I have said, there is production of male and female gametes gametogenesis में, और उसके बाद आता है gamete transfer जिसमें gametes has to reach and fuse to each other. सो इफ आई टॉक अबाउट मेल गैमेट्स, दे आर मोटाइल इन नेचर यानी कि मूव करते हैं, एंड फीमेल गैमेट्स आर स्टेशनरी इन नेचर यानी कि एक ही जगह पर रहते हैं। सो अगर मैं कुछ एक्सेप्शनल के बारे में बात करूं जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों भी मोटाइल नेचर के होते हैं और उन्हें एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है जहां पर वो एक्चुअली फ्यूज़ हो सके। सो दैट मीडियम इज़ वाटर, बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज़ वेरी हाई एंड द गैमेट्स आर लो इन कॉन्सेंट्रेशन, देर आर हाई चांसेस ऑफ फेलियर। और ये फेल नहीं होने के लिए क्या किया गया है, टू कॉम्पनसेट दिस टाइप ऑफ कंडीशंस मेल गैमेट्स को इंक्रीज किया गया है। तो मेल गैमेट्स हमेशा हाई नंबर में प्रोड्यूस होते हैं सो दैट दे कैन ईजीली गो एंड फ्यूज टू द फीमेल गैमेट्स टू ratify this kind of situations. So I hope gamete transfer is easy for you to understand. Now the next is प्लांट्स के अंदर अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करें तो पॉलिनेशन प्रोसेस के थ्रू इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। एंथर इज द मेल पार्ट एंड स्टिग्मा इज द फीमेल गैमेट। सो इसके अंदर क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन है वो बेसिकली मेल पार्ट में से फीमेल पार्ट तक पहुंचाने का काम करेंगे। सो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर मतलब सेल्फ पॉलिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि एक प्लांट जो है वो उसके अंदर एंथर और स्टिग्मा दोनों भी एक ही प्लांट में है, बिकॉज इट इज बाइसेक्सुअल एंड देयरफॉर दे आर क्लोजली रिलेटेड टू लोकेटेड टू ईच अदर, और इसीलिए इट इज ईजी फॉर देम टू ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। बट इफ आई टॉक अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट वराइटीज ऑफ प्लांट होते हैं और उसमें एक प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन्स तक पहुंचाना है। सो एक प्लांट जो है उसके पॉलन ग्रेन्स, इसके ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स ग्रो हो रहे हैं इसके एंथर से इसके स्टिग्मा तक पहुंचाना है। दिस इज कॉल्ड टू बी द क्रॉस पॉलिनेशन। सो ऐसे दो मेथड्स होते हैं पॉलिनेशन के लिए। सो इसके अंदर हम लोग को डिफरेंट वैरायटीज देखने मिलती है, जबकि इसके अंदर हम लोग को सेम आइडेंटिकल वैरायटीज देखने के लिए मिल सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीड एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन को हम लोग सिंगैमी भी बोलते हैं, और इसके अंदर डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, यानी कि दो हैप्लॉइड गैमेट जब साथ में आते हैं तो एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं जिसके अंदर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जैसे फीमेल एंड मेल गैमेट्स फ्यूज नहीं होते हैं और डायरेक्टली फीमेल गैमेट जो है वो डेवलप्ड हो जाता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। वो प्रोसेस को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। So here the condition is like the zygote has not formed directly from the female gamete, it is been developed to a new organism, therefore this process is called as parthenogenesis. Now fertilization is of two types, one is internal fertilization and other one is the external fertilization. Internal fertilization में body के अंदर ही female and male gametes fuse होते हैं to form zygote. If I talk about external fertilization, जैसे हम लोग ने previous example में देखा था, water is acting as a medium so that fusion can occur, that is example of external fertilization, जिसमें हम लोग को एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर एक्चुअली स्पर्म एंड ओवम फ्यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन इवेंट। नाउ वी हैव पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें जाइगोट जो है, जो जाइगोट बना हुआ है वो अभी एक एम्ब्रियो में डेवलप्ड हो जाएगा। सो दिस जाइगोट इज अंडरगोइंग सम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल डिविजन एंड देन इट इज गोइंग टू फॉर्म अ एम्ब्रियो। तो ये इनसाइड द वूम हो सकता है और आउटसाइड लाइक एन एग भी दिस कैन डेवलप्ड।
सो नेक्स्ट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, जो कि अगर हम लोग प्लांट के बारे में बात करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में ये देखने मिलता है। अब फ्लावरिंग प्लांट के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो जैसे मैंने बोला था, सपोज दिस इज द ओव्यूल, जो कि स्टिग्मा के अंदर है। तो एंथर क्या करेगा, इसके पास पॉलन ग्रेन को भेज देगा। तो पॉलन ग्रेन इसके अंदर जाते ही क्या हो जाएगा, ये जो ओव्यूल है ना, वो फॉर्म करेगा सीड, और जो ये ओवरी है जिसके अंदर ये ओव्यूल है, वो ओवरी फॉर्म करेगा फ्रूट, जिसके बाहर एक हार्ड कोटिंग होता है जिसको हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं, और वो बेसिकली प्रोटेक्शन का हेल्प करता है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर दैट वन इज ओवरी, उसके अंदर है ओव्यूल, उसके अंदर जाता है पॉलन ग्रेन। सो दिस ओव्यूल इज गोइंग टू फॉर्म द सीड एंड द ओवरी इज गोइंग टू फॉर्म द फ्रूट, जिसके बाहर एक हार्ड लेयर है जिसको हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं, और ये जो सीड है अंडर फेवरेबल कंडीशन इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। ओके, सो दिस वाज ऑल एम्ब्रियोजेनेसिस जो प्लांट में होता है। अगर हम लोग एनिमल्स की बात करने जाए तो जाइगोट फॉर्म होगा, और जाइगोट विल अंडरगो सम डिफरेंट टाइप ऑफ माइटोसिस और एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा। सो देर इज टू टाइप ऑफ एनिमल्स, वन इज ओवीपेरस एंड द अदर वन इज विविपेरस। ओवीपेरस का मतलब होता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट जो फॉर्म हुआ है वो डेवलप्ड होता है बॉडी के बाहर। सो इफ देर इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आउटसाइड द बॉडी इट इज टर्म टू बी ओविपेरस, और if there is development of embryo from the zygote inside the body it is considered to be viviparous. So viviparous is more efficient than the oviparous, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं होता है oviparous में, and it is more protective for the embryo as compared to the oviparous. So this ends with the chapter reproduction in organism. I hope you are clear with this chapter. If you still have some doubts you can drop message on this, or you can contact us with the email address or the website. All are mentioned in this photo. Thank you.